Let us read through the set, decision making set from ZAT 2023 on recruitment. So Bharat Business School, BBS, is a premier business school, and the school is renowned for the quality education it provided. So BBS is a premier business school, and it is renowned for the quality education that it is providing. Its faculty are known for their domain area expertise and excellence in teaching, competed with each other for a better student feedback. So they have domain area expertise and they are excellent in teaching. Of late, the institute was finding it difficult to upgrade. So this is a concern. Finding it difficult to upgrade its course content with rapidly changing global business scenario. The difficulty is multiplied when the school realized that some of the senior faculty would retire on regular basis. So this is also another concern. Starting in the near future, to overcome these difficulties, BBS decided to recruit young faculty in all the departments: economics, finance, marketing, HRM, production. So there are basically two issues, two problems which are to be addressed. First problem क्या है? First is difficult to upgrade, so upgrading course content, that is first issue. Second issue है that retirement on regular basis, यानी कि retirement है second issue, retirement of some faculty. So there are two issues, upgrading the content and retirement of faculty. So when the Dean Academics scanned the applications, she found three distinct types of aspirants. First is A-type candidates who were very good teachers. So they want very good teachers because they already have some very excellent teachers. So very good teachers who are competent at teaching the courses taught by existing faculty members. So the courses taught by existing faculty members, which is the same courses which have been taught, which are being taught in the organization in BBS Bharat Business School, can be taught by these as well, and they are competent in that, very good teachers. So definitely retirement का issue तो इससे solve हो सकता है, retirement वाला issue, isn't it so? Because the faculties, some faculties are retiring, so those who will be retiring can be replaced by these faculties. Okay, these candidates. Second, B-type candidates who are average teachers. So they are average teachers, not as good as A-type candidates. Competent at creating and teaching new courses that would complement the existing courses taught by the current faculty. So the good thing about them is that they can create and teach new courses, which is they can upgrade the content that would complement existing courses. But what is not good about them, that they are average teachers. They are not very good teachers, they are average teachers. Then third, C-type candidates who are not so good teachers, willing to teach any course BBS required. So they are willing to teach anything whatsoever, but the problem is they are not so good. So there is nothing USP, no USP with C-type candidates. They are not so good and they are willing to teach any course. That is the only thing that is there. So note 1 is a course is termed complementary when it covers latest content and complements existing courses offered by a department. So definitely when it covers latest content, then it is called complementary, यानी कि upgradation of content से related है. और note 2, each department decides the suite of content courses to be offered. ये department के ऊपर है, department का autonomy है कि what courses will be offered. Okay, so these are the two notes. Now going to the questions. ठीक है, understood कि हमारे पास दो issues हैं, दो problems हैं, upgrading the content and retirement of faculties, और तीन टाइप के कैंडिडेट्स हैं, A type, B type, C type. A type are good teachers, they are competent at teaching the courses that are being taught already. B type are average teachers, but they are competent at creating and teaching new courses that would complement the existing courses. And C type are not so good teachers, willing to teach any course whatsoever. So question number 1 is, given the above context same passage है, ठीक है, given the above context, which of the following options will be best recruitment decision by BBS? तो इस केस में हमें क्या करना है? वी हैव टू सेलेक्ट बेस्ट रिक्रूटमेंट डिसीजन. बेस्ट रिक्रूटमेंट डिसीजन लेना है हमको. ऑप्शन ए कह रहा है डोंट रिक्रूट
and request the existing faculty to develop complementary courses. Option A is saying don't recruit. पहली चीज तो ये है कि सारा का सारा प्रॉब्लम क्या है, रिक्रूटमेंट का ही है, रिक्रूटमेंट तो करना ही है एंड इट इज सेइंग डोंट रिक्रूट. कंसर्न क्या है भाई, रिटायर हो रहे हैं फैकल्टीज और अपग्रेड करना है कंटेंट, दोनों ही चीजों को क्या रिजॉल्व करता है. इट इज सेइंग रिक्वेस्ट द एग्जिस्टिंग फैकल्टी टू डेवलप कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज. अगर ये पॉसिबल होता, एग्जिस्टिंग फैकल्टीज डेवलप कर पाते कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज, तो ये सारा कंसर्न आता ही नहीं. तो डेफिनेटली ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर. रिक्रूट तो करना पड़ेगा बिकॉज रिटायर हो रहे हैं फैकल्टीज, और सेकंड चीज है अपग्रेडेशन ऑफ कंटेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट इज डेफिनेटली नॉट द राइट आंसर. और कुछ नहीं करना तो कभी सॉल्यूशन होता भी नहीं है. ठीक है. सो बट हालांकि कुछ नहीं से इसमें क्या था, रिक्वेस्ट करना एग्जिस्टिंग फैकल्टी को. बट रिक्वेस्ट करने से क्या होगा, इफ दे आर नॉट एज कम्पिटेंट, बिकॉज अगर कम्पिटेंट होते तो ऑलरेडी वो डेवलप कर रहे होते कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज. ऑप्शन बी, हायर बी टाइप कैंडिडेट्स सो दैट ऑल टाइप्स ऑफ कोर्सेज कैन बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट्स. ठीक है. तो सीम्स गुड बिकॉज बी टाइप कैंडिडेट्स जो हमारे हैं दे आर एवरेज टीचर्स. बट वो एक कंसर्न हमारा सॉल्व कर देंगे. कौन सा कंसर्न, अपग्रेडेशन ऑफ कंटेंट. तो अपग्रेडेशन वाला कंसर्न तो सॉल्व करते हैं, वो फर्स्ट कंसर्न को सॉल्व करते हैं. बट सेकंड जो रिटायरमेंट हो रहा है फैकल्टीज का, उसका क्या, दैट सेकंड कंसर्न इज नॉट रिजॉल्व्ड बाय बी टाइप कैंडिडेट्स बिकॉज दे आर एवरेज टीचर्स, दे आर नॉट गुड टीचर्स. डेफिनेटली वी नीड some very good teachers to replace the retiring faculties, क्योंकि सीनियर फैकल्टी रिटायर कर रहा होगा, isn't it? So उनको रिप्लेस करना है. सो बी टाइप कैंडिडेट्स आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम नंबर 2. 1 को सॉल्व कर रहे हैं बट 2 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. ऑप्शन सी, हायर ए टाइप कैंडिडेट्स अनकंडीशनली वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, अनकंडीशनली एंड अलाउ देम टू टीच कोर्सेज टॉट बाय द एग्जिस्टिंग फैकल्टी. ठीक है. सो ए टाइप को अनकंडीशनली हमें हायर करना है और then we have to allow them to teach courses taught by the existing faculty. The problem is that this is solving the retirement concern, yes, but first upgradation concern, this is not solving that. So hold पे रखते हैं B और C को, because B और C एक concern तो solve कर रहे हैं at least. D, hire A type candidates on a condition that they will have to develop complementary courses. So if that is possible, option D, कि we hire A type candidates but there is a conditionality attached that they will have to develop complementary courses. So they are very good teachers, so they can replace the existing faculty. That is first thing. So they are definitely solving the second concern, and we also have a condition there that they will have to develop complementary courses. So if they develop complementary courses, the upgradation thing is also done. So both the concerns are resolved by option D, isn't it so? That is why option D is much better than B and C. Much better than B and C. दोनों कंसर्न को रिजॉल्व कर रहे हैं. लास्ट इज हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एज दे कैन टीच एनी कोर्स डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज सी टाइप कैंडिडेट्स क्या है, दे आर नॉट सो गुड टीचर्स. सो यस दे कैन टीच एनी कोर्स बट क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ना, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी. तो ऑप्शन ई इज डेफिनेटली नॉट द सॉल्यूशन. ऑप्शन डी इज द बेस्ट रिक्रूटमेंट डिसीजन. इज इट क्लियर? ठीक है. ऑप्शन डी विल बी द बेस्ट आंसर बिकॉज दोनों कंसर्न से रिजॉल्व होता है यहाँ पे. ऑप्शन ई का कोई सेंस ही नहीं बनता. क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना है तो फायदा ही क्या है फिर. नेक्स्ट, सपोज द डीन एकेडमिक्स वांटेड टू रिड्यूस फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स. तो पीछे वाले केस में क्या था, हमें बेस्ट रिक्रूटमेंट डिसीजन लेना था. इस बार कंसर्न डिफरेंट है कि ही वांटेड टू रिड्यूस फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, कि आगे कभी कोई लोचा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट ना हो एंड पॉलिटिकल मैनूवरिंग ना हो, टू इंश्योर हार्मनी अमंग द फैकल्टी. So this is the concern this time, that future conflicts are to be reduced, political maneuvering has to be reduced. Which of the following options will best reduce conflicts and politicking? So that will be our best option this time. Option A, hiring ही कर रहे हैं हम, because hiring ही कर रहे हैं. Hire B type candidates to teach complementary courses. So if we hire B type candidates who are average teachers, but they will be teaching complementary courses. So these courses are different, new courses है, new courses of upgraded content. So एक separate courses को B type candidates पढ़ाएंगे और already जो courses चल रहे हैं existing courses हैं, they will be taught by existing faculty, existing courses by existing faculty. So दोनों के बीच में एक डिमार्केशन रहेगा, डिफरेंस रहेगा, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को. दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड कोलैबोरेट. तो एक अच्छा कोलैबोरेशन का एटमॉस्फेयर बनेगा. और क्योंकि एक दूसरे की जोन में नहीं इंटरफेयर करेंगे, बिकॉज एग्जिस्टिंग फैकल्टीज विल बी टीचिंग एग्जिस्टिंग कोर्सेज एंड न्यू फैकल्टीज
higher B type candidates will be teaching new courses. They will be teaching new courses, so definitely there will be no conflict whatsoever, no political maneuvering. So option A seems decent option. Option B, hire A type candidates to teach existing courses and ask existing faculty to teach new courses. अब A type candidate को हायर किया, हायर करके बोलोगे कि जो कोर्सेज चल रहे हैं existing, they will be taught by A type candidates and existing faculty जो है they will be teaching new courses. तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा? थिंक अबाउट इट. कि A टाइप कैंडिडेट्स आके जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज उनको पढ़ाना शुरू कर दें और जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उनको तुम वहां से कह दो कि भैया अब तो तुम्हारा टाटा बाय बाय, तुम नए कोर्सेज पढ़ाओ. तो क्यों पढ़ाएंगे वो नए कोर्सेज और क्यों कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? सो दिस इज अ परफेक्ट रेसाइप फॉर कॉन्फ्लिक्ट. तो ये तो परफेक्ट रेसाइप है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जस्ट द ऑपोजिट. तो डेफिनेटली दिस शुड नॉट बी द आंसर. कॉन्फ्लिक्ट चाहिए तो बस बी कर दो, हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट. तो डेफिनेटली नॉट द आंसर. Option C, hire A type candidates and let the new as well as existing faculty offer same courses. तो A type candidates are good teachers, that is good about them. But कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि new as well as existing faculty will be offering same courses. पहले वाले क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम नहीं होता उतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हमें पॉलिटिक्स और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात नहीं करनी थी. बट इन दिस केस वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट ओनली. सो अगर सेम कोर्सेज दोनों ही ऑफर करेंगे, एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू फैकल्टी, तो क्या होगा? ओवरलैप होगा दोनों के बीच में. ओवरलैप, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा. दोनों ही सेम कोर्स ऑफर कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो फिर पॉलिटिक्स तो होगी, रायता तो फैलेगा. तो ऑप्शन सी विल डेफिनेटली इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिक्स विल बी देयर. ऑप्शन सी इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर. ऑप्शन डी, हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एंड अलाउ देम टू टीच ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज. एक तो हायर करो उनको और उसके बाद में सारे कोर्सेज वही पढ़ाएं. प्रॉब्लम है, सी टाइप तो वैसे ही नॉट सो गुड टीचर्स हैं, क्वालिटी कि ऐसी तैसी हो जाएगी, कचरा हो जाएगा. और साथ में जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है वो भी चुप थोड़ी बैठेंगे. उसके बाद पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स होगा, डिजास्टर होगा, तबाही हो जाएगी. ठीक है, डी इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. ऑप्शन ई, हायर बी टाइप कैंडिडेट्स एंड अलाउ देम टू टीच ऑल काइंड्स ऑफ कोर्सेज. अगेन बी टाइप कैंडिडेट्स आर एवरेज टीचर्स, दे आर नॉट गुड टीचर्स. सो देयर यूएसपी इज क्रिएटिंग एंड टीचिंग न्यू कोर्सेज, न्यू कंटेंट. So upgradation of content is their USP, but allowing them to teach all kinds of courses is definitely not going to resolve any conflict whatsoever. इससे प्रॉब्लम क्रिएट होगा बिकॉज जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी उनका जो फील्ड एक्सपर्ट्स हैं दे आर टीचिंग देम, और बी टाइप कैंडिडेट्स एवरेज टीचर्स हैं, और फिर वहीं पे आएंगे तो फिर ओवरलैप होगा इनकी वजह से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, पॉलिटिक्स आएगी. तो ई इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. ऑप्शन ए इज द ओनली ऑप्शन विच इज making sure that there is no conflict and no politics. So option A will be our correct answer for this particular question. Is it clear? Okay. Next question पे चलते हैं. Question number 3. Suppose the Dean Academics wanted to ensure the most efficient utilization of faculty resources. तो this time Dean Academics को politics का चक्कर नहीं है. इस बार क्या है? Most efficient utilization चाहिए. So which of the following hiring decisions will ensure most efficient utilization? Okay, most efficient utilization किससे इंश्योर होगा? Efficiency क्या है? Efficiency is in any organization, efficiency is अगर प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन विद मिनिमम वेस्टेज, विद मिनिमम वेस्टेज. यहाँ प्रोडक्शन तो करना नहीं है बट वेस्टेज शुड बी मिनिमम, यानी कि जो भी हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं दैट शुड बी एज एफिशिएंट, मींस कि यूजेज विद मिनिमम वेस्टेज, यानी कि अननेसेसरी जो गार्बेज है वो हमें नहीं फिल करना है. अगर किसी ऑप्शन में गिवन है यूजेज विद मिनिमम वेस्टेज, और यूटिलाइजेशन यानी कि परसेंटेज, जो भी इंटेंडेड पर्पज है हमारा, इंटेंडेड पर्पज शुड बी सर्व्ड, इंटेंडेड पर्पज शुड बी सर्व्ड. यानी कि अगर हम बी टाइप कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं तो दे शुड बी टीचिंग न्यू कोर्सेज, द कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज, द अपग्रेडेशन ऑफ कंटेंट, जो कि उनका बेस्ट काम है. उनसे हम वो चीज़ें नहीं करवाएं जो वो करने में फिट नहीं है. ठीक है, तो इंटेंडेड पर्पज शुड बी सर्व्ड, दैट इज व्हाट द यूटिलाइजेशन इज. तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन विल बी कि इंटेंडेड पर्पज सर्व हो और साथ में मिनिमम वेस्टेज हो, यूजेस विद मिनिमम वेस्टेज. ओके, सो ऑप्शंस को अब वे इन करते हैं. ऑप्शन ए कह रहा है हायर ए टाइप कैंडिडेट्स capable of developing complementary courses. So we will be hiring A type candidates who are capable of developing complementary courses. Okay, ठीक है. So this seems a decent option. कि A type candidates को हमने हायर किया, they are very good teachers, and secondly
इफ दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज, तो हमारा अपग्रेडेशन वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा उनसे. इज दैट इट? सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि दोनों ही इश्यूज यहाँ पे रिजॉल्व हो रहे हैं हमारे. इज इट क्लियर? तो ऑप्शन ए को होल्ड पे रखते हैं, इट इज अ गुड ऑप्शन. ऑप्शन बी, हायर सी टाइप कैंडिडेट्स एंड असाइन देम टीचिंग असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दे आर नॉट सो गुड टीचर्स, सो दे आर बीइंग असाइंड टीचिंग असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बट प्रॉब्लम क्या है इस ऑप्शन के साथ में, कि कहीं पे भी हमारे इनिशियल पैसेज में क्या ये मेंशन्ड है कि हमें टीचिंग असिस्टेंट की जरूरत है? इज देयर एनी रिक्वायरमेंट व्हाटसोएवर? कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है टीचिंग असिस्टेंट की. और अननेसेसरली ये ऑप्शन कह रहा है हमसे कि टीचिंग असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी असाइंड टू सी टाइप कैंडिडेट्स. सो द थिंग दैट इज नॉट नीडेड, जो जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी वेस्टेज है, फालतू का कचरा है, तो बी इज डेफिनेटली नॉट द आंसर. ठीक है, फालतू का वेस्टेज है, कोई जरूरत ही नहीं टीचिंग असिस्टेंट की एज पर गिवन क्वेश्चन. अगर जरूरत होती तो फिर वी वुड हैव थॉट अबाउट ऑप्शन सी, हायर बी टाइप कैंडिडेट्स टू टीच कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज. नाउ एज वी नो अबाउट बी टाइप कैंडिडेट्स, देखो बी टाइप कैंडिडेट्स हमारे जो हैं, दे आर एवरेज टीचर्स बट दे आर कंपीटेंट एट क्रिएटिंग एंड टीचिंग न्यू कोर्सेज. और ये हमारा कह रहा है ऑप्शन इज सेइंग टू टीच कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज, बट यहाँ पे कहीं पे भी क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा है. वाई शुड वी नॉट आस्क बी टाइप कैंडिडेट्स क्रिएट द कोर्सेज? एंड इफ दे विल ओनली बी टीचिंग, so they are only fulfilling one concern but they are not creating the content. तो inefficient utilization हुआ ना ये, ultimately ये inefficient utilization हुआ. That is the problem with option C. This is inefficient utilization of resources. So C should not be the answer. ठीक है, should not be. बाकी अभी और भी ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं. A seems best fit among these three. D, hire A type candidates and let the new as well as existing faculty teach same courses. A type candidates को हायर करेंगे बट सेम कोर्सेज पढ़ाएंगे वो, यानी कि न्यू कोर्सेज की बात नहीं हो रही, कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज की बात नहीं हो रही, सेम कोर्सेज को दोनों ही पढ़ाने वाले हैं. तो क्या ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हुआ? थिंक अबाउट इट. एग्जिस्टिंग फैकल्टीज आर टीचिंग दोज कोर्सेज, न्यू फैकल्टी विल ऑल्सो बी टीचिंग दोज कोर्सेज. सो दिस इज फाइन, ओके है, ओकेइश है, बट डेफिनेटली लेस देन ए. सो ए इज ग्रेटर देन D. A is greater than D. And option E, ask existing faculty to develop complementary courses. Now this one seems very lucrative. ये बड़ा अच्छा ऑप्शन लग रहा है कि existing faculties हैं, वही existing courses भी पढ़ा रहे हैं और वो नया वाला complementary courses भी डेवलप करना स्टार्ट कर दें, तो बहुत ही efficient utilization हो जाएगा. नए फैकल्टीज को हायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. Isn't it so? सारा काम उनसे ही करवा लेंगे. परफेक्ट. बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम इस ऑप्शन के साथ में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट में जब हम पैसेज को पढ़ रहे थे तो वी नो कि दे आर डोमेन एक्सपर्ट्स, दैट इज फाइन, दे आर गुड टीचर्स, एक्सीलेंट इन टीचिंग. बट ऑलरेडी कंसर्न क्या इंस्टीट्यूट के साथ में? इंस्टीट्यूट इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अपग्रेड इट्स कोर्स कंटेंट. सो प्रॉबेबली बिकॉज ऑलरेडी ये टीचर्स तो थे यहाँ पे, तो डिफिकल्टी क्या है अपग्रेड करने की? अपग्रेडेशन का डिफिकल्टी यही हो सकता है कि दे आर प्रोबेबली नॉट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग न्यू कोर्सेज, डेवलपिंग कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज. सो ये तो ठीक है कि हम उनसे ऐसा कहें, बट आर दे कैपेबल? Are they capable? Probably not, because if they were, तो concern arise ही नहीं होता ना upgradation का, but upgradation is a real concern. So probably E is, they are, existing faculty are not competent, not capable of developing complementary courses. They are very good teachers, definitely very good teachers, domain experts, but they are not very capable of creating, upgrading the content. So between E and A is greater than E. A is a better option as compared to E, because E में हमें पता है कि existing faculty से पूछा तो जा सकता है, but they probably won't be able to develop complementary courses. And A type candidates capable of developing complementary courses will be the most efficient utilization of faculty resources. So option A should be our perfect answer for this particular question. आई बिलीव तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ में आए होंगे, लॉजिक क्लियर हुआ होगा और सेशन में मजा आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो यू कैन ऑलवेज आस्क एंड कमेंट अबाउट दैट. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दैट एज वेल. बाय बाय.